میری بڑی بہن چھپ چھپ کر کسی لڑکے سے ملتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں ابو کو بتا دیا۔ ابو نے باجی کو خوب ڈانٹا اور مارا۔ چند سال بعد میری شادی ہو گئی اور باجی کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ امی ابو کی وفات کے بعد باجی میرے گھر رہنے لگی۔ باجی نے میرے شوہر کو ایسی بات بتائی کہ اگلے دن میرے شوہر نے 3 بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال کر طلاق دے دی۔ باجی اگلے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم پر۔ وسیم ہمارے ابا کے پرانے ملازم کا بیٹا تھا۔ جب یہ 11 سال کا تھا اس کے ماں باپ زلزلے میں مکان کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ لڑکا زندہ بچ گیا۔ والد صاحب اسے گھر لے آئے اور اس کی پرورش کرنے لگے۔ وہ صرف 8ویں تک پڑھ سکا۔ گھر کے برابر والد صاحب کا گودام تھا جہاں وہ دکان کا مال سٹاک کرتے تھے۔ وسیم کو گودام میں رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ کھانا وہ ہمارے گھر سے کھاتا۔ گودام کی صفائی اور رکھوالی کے علاوہ گھر کا سودا سلف بھی اسی کے ذمہ تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ وسیم گبرو جوان ہو گیا۔ اس نے قد کاٹ شکل و صورت خوب نکال لی تھی۔ والد صاحب کو ایک معاون کی ضرورت تھی اور اس لڑکے کا بھی کوئی نہ تھا۔ تبھی یہ اب ہمارے کنبے کے لیے لازمی ہو گیا تھا۔ پاؤں کی جوتی کو کوئی سر پر نہیں رکھتا، یہ میری امی جان کے الفاظ تھے۔ وہ خدمت گار کا بیٹا تھا اور اسے خدمت گار ہی رہنا تھا، لہٰذا والدہ وسیم سے فاصلہ رکھتی تھی۔ کہتی تھی میرے گھر میں بچیاں ہیں اور غیر لڑکے کو دہلیز سے باہر ہی کھڑا رکھوں گی، اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا غلط ہوگا۔ والد صاحب کو تاکید کر دی کہ اب اندر نہیں آئے گا، جوان ہو گیا ہے، جو کام ہوگا اس کو باہر سے ہی بتا دیں گے اور کھانا بھی دروازے کے پاس رکھ دیں گے، اٹھا لے گا اور برتن واپس دروازے کے پاس رکھ کر دستک دے گا تو ہم خود بعد میں اٹھا لیں گے۔ والد صاحب وسیم سے پیار کرتے تھے لیکن والدہ کی رضا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا، بس جیسا اماں نے کہا ویسا ہی کیا۔ تاہم کبھی کبھار ہم کو اس لڑکی کی ضرورت پڑ ہی جاتی تھی۔ جب کبھی بھاری سامان ادھر سے ادھر کرنا ہوتا، چھت کے جالے صاف کرانے ہوتے یا پھر کوئی سوئچ وغیرہ درست کرانا پڑتا، امی وسیم کو گھر کے اندر بلاتی لیکن باجی کو منع کرتی کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی۔ باجی بھی ایک کایاں تھی، امی کی نظر چوکتی تو وسیم سے باتیں کرنے لگتی۔ وہ ماں کی بات نہ مانتی، ماں کو غصہ آ جاتا اور اکیلے میں سمجھاتی غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتے، تم اس سے پردہ کیا کرو۔ باجی تہمینہ ان دنوں FA میں تھی۔ امی جان بیمار ہو گئی اور یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی۔ بلڈ پریشر کے باعث والدہ کے گردے خراب ہو گئے اور کچھ دن بیمار رہ کر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمارے لیے صدمہ بہت اذیت ناک تھا۔ میں تب 7ویں میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی کمی باجی کی باہوں میں خود کو چھپا کر پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بھی سمجھدار تھی، مجھ کو پیار کرتی، یوں بڑی بہن کے شانے سے لگ کر غم آدھا رہ جاتا تھا۔ FA کے پیپرز دینے کے بعد میری یہ بہن گھر بیٹھ گئی۔ چھوٹے بہن بھائی سنبھالنے کی خاطر قربانی دی تو ہم بھی اپنی بہن پر انحصار کرنے لگے اور ان کو بڑا سمجھنے لگے۔ وہ کھانا پکاتی، ہمارے کپڑے دھو کر استری کرتی اور ہم کو تیار کر کے اسکول بھیجتی، اپنے والد کی بھی خدمت کرتی۔ لگتا تھا کہ ماں کا خلا باجی کے پیار نے پر کر دیا ہے، ورنہ تو شاید ہم کو والدہ کی محرومی ختم کر دیتی۔ 8ویں میں ہوش سنبھال لیا تو اپنی اس محسن بہن کو کسی اور کھیل میں الجھا ہوا پایا۔ والد صبح کام پر نکل جاتے اور رات گئے لوٹتے، میں اور نائمہ اسکول چلی جاتی، ہمارا بھائی بھی پڑھنے چلا جاتا۔ گھر پر باجی اکیلی ہوتی تو وہ چھت سے گودام میں جھانک کر وسیم کو آواز لگا کر گھر کے اندر بلا لیتی کسی کام کے بہانے سے، اور پھر وہ تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے اور ان کی ملاقاتوں نے ایک نیا روپ دھار لیا تھا۔ اتفاقاً کبھی میں اور نائمہ اسکول سے جلد آ جاتے تو ہم وسیم کو گھر کے اندر بیٹھا پاتے۔ شروع میں دھیان نہ گیا، رفتہ رفتہ میرے دل میں عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے کہ یہ روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھی کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ وسیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا تھا۔
जब हम ना समझते किसी बात को ख्याल में ना लाते थे, जो जो अकल आती गई, वसीम को बाजी के साथ बेतकल्लुफी से गुफ्तगू करता पाकर दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। हम जानते थे कि वो रिश्तेदार नहीं है, हमारा मुलाजिम है। कभी अम्मी अब्बू ने उसे हम लोगों के दरमियान घुलने मिलने ना दिया था। उसकी हैसियत हमेशा नौकर की सी रही थी। भाई हम दोनों बहनों से छोटा था, मैं ही बड़ी थी, तभी ज्यादा फिक्र मुझी को हुई थी। अब्बा की वजह से चुप थी कि उनको दुख ना पहुंच जाए, लेकिन बाजी के लक्षण देखकर दिल जल के खाक हुआ जाता था। पहले बाजी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अब वसीम की खातिर हमको बुरी तरह नजरअंदाज करने लगी थी। वो हर वक्त वसीम के आगे पीछे फिरती और उसी को अहमियत देने लगी। जब वो होता खूब उसकी खातिर तवाज़ो करती, अच्छा खाने को देती और हमको सिर्फ डांटती रहती थी कि भूख से तुम मरे तो नहीं जा रहे। वो वसीम को नवाले खाने को देती और हम बैठे मुंह तका करते। बाजी के इसी रवैये ने हम तीनों को उनके खिलाफ कर दिया। जब मैं नवी क्लास में थी, ज्यादा उलझाव में रहने लगी। एक रोज जुर्रत करके बहन को जतला भी दिया कि बाजी देखो, तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है, बाज आ जाओ वरना अब्बा से कह दूंगी। इस नौकरजात को तुम घर में मत बिठाया करो और उम्दा खाने भी पेश ना किया करो, वरना ये अपनी औकात से बाहर आ जाएगा तो हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। बाजी ने उस दिन मुझे बहुत लान तान की कि अफसोस है तुम्हारी सोच पर, पढ़ लिख कर जाहिल रह गई हो। क्या हमारा मजहब इस बात का दर्स नहीं देता कि अमीर गरीब सभी इंसान बराबर होते हैं, और तुम मुझे गरूर सिखा रही हो। वसीम नौकर है तो क्या हुआ, हमारी तरह इंसान तो है, इतनी हकारत अच्छी नहीं। मैं हकारत नहीं कर रही बाजी, बल्कि आपको एहतियात से काम लेने का कह रही हूँ। अब्बा की लाइल्मी में क्यों इस गैर आदमी को घर के अंदर बिठाती हो, जबकि अम्मा भी फासला रखती थी और इसको घर में नहीं घुसाती थी। अपना नहीं तो अपनी बहनों का ख्याल कर लो। यकीनन जब अब्बा को इस बात का इल्म होगा, वो बहुत नाराज होंगे और बहुत गुस्सा करेंगे, और कभी ना कभी तो उनको इल्म हो ही जाएगा। बाजी पर मेरी तंबी का कोई असर ना हुआ। हम तो यूं भी मजबूर थे कि छोटे थे, हमको और घर को वही संभालती थी। लेकिन अब जबकि मैं अच्छा बुरा समझने लगी थी, तो कैसे चुप रहती। मैंने भी कह दिया, अगर बाज ना आई तो सब कुछ अब्बा से कह दूंगी, फिर तुमको वो मारेंगे और घर से निकाल देंगे, और इस सब की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन अब मुझसे और ज्यादा कुछ बर्दाश्त न होगा। जब देखा कि मेरे तेवर कड़े हैं, आपे से बाहर हो गई और वो जूता उठाकर मुझे मारने लगी। इस पर मेरे दिल में तो जैसे आग सी भड़क उठी। पहले तो मैं उनको महज डरा रही थी, अब कसम खा ली कि जो हो सो हो, अब्बा से जरूर उनकी शिकायत करूंगी। शाम को अब्बा आए तो मेरा मुंह सूजा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, हमारी बेटी को क्या हुआ है, क्यों आंखें सूजी हैं। मैं तो बस फट पड़ी और जज्बात में आकर अब्बा को बता दिया कि बाजी रोज वसीम को बुलाकर बिठा लेती हैं, उसे किचन में बिठाकर गरम गरम खाने पेश करती हैं। हम तो स्कूल होते हैं, जब आते हैं ये मौजूद होता है। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब वसीम जाएगा या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कहने के तो ये सब कह गई, लेकिन अब्बा की तरफ ना देखा। वो तो बस गुस्से में आग बगोला हो गए थे। उसी वक्त घर से निकलकर गोदाम की तरफ गए और वसीम से कहा कि 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ना जाने क्यों कर उन्होंने खुद पर काबू पाया, जो वसीम को जाने दिया, वरना इतने गुस्से में थे कि खुद मैं डर गई थी कहीं उसका खून ना कर दें। वसीम उसी वक्त चला गया, खुदा जाने कहाँ गया। मैं अब पछताई के जल्दबाजी में अब्बा को बताकर बाजी की बेकदरी करा दी थी। जैसी भी थी, हमको तो मोहब्बत दे रही थी, देखभाल और हमारे सारे काम करती थी। तालीम हमारी खातिर छोड़ी, इतनी कुर्बानी दी ताकि अब्बा कहीं दूसरी शादी करके सौतेली माँ ना ला बिठाएं। अब बुरे दिनों ने मुझे घेरा। अब्बा का बस ना चलता था कि बाजी को कुएं में धक्का दे देते और वह उठते बैठते मुझे कोसती कि कम बख्त बहन है कि डाइन, मुझसे मेरे बाप की शफकत और मोहब्बत छीन ली। नागन, मैं तो हर वक्त तुझ पर निछावर हुआ करती थी और तूने ये सिला दिया है कि मुझे बाप की नजरों से गिरा दिया। वसीम से बातें ही करती थी ना, कभी कोई गलत हरकत करते तो नहीं देखा था ना। फिर इतनी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर क्यों अब्बा से कह दिया। मैं भी इंसान हूँ, कहीं आती जाती नहीं हूँ, हर वक्त तुम लोगों की सेवा करती रहती हूँ। तन्हाई से उकताकर वसीम से दो बातें करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि तूने उस बेचारे यतीम से रहने का ठिकाना भी छीन लिया। अब ना जाने वो कहाँ मारा मारा फिरता होगा।
बहुत गुनाह होगा, आइमा देख लेना तुझे, तेरा भी हाल बुरा होगा और तू भी ऐसे दरबदर होगी कि उसकी बदुआ उम्र भर तेरा पीछा करेगी। ये जुल्म बहुत महंगा पड़ेगा जो तूने उसके साथ किया है। जूं जूं वो मुझे कोसती मैं परेशान हो जाती। वसीम तो फिर पलट कर ना आया और ना उसका कुछ अता पता रहा। मैंने रोते पीटते बीए कर लिया, तभी एक अच्छा रिश्ता आ गया। अब्बा ने झटपट मेरी शादी कर दी। बाजी बेचारी अभी तक कुर्बानी का बकरा बनी हुई थी कि एक छोटी बहन और भाई बाकी थे जिनकी देखभाल उन्हें करनी थी। कुछ रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को सलाह दी, अब तुम दूसरी शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए और फिर तुम तहमीना की शादी कर देना। वालिद भी चाहते थे कि बाजी तहमीना की शादी कर ले, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था और वो इसी कोशिश में थे कि इधर बेटी के फर्ज से सबको दोष हूं तो फिर अपनी शादी के बारे में सोचूं। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। अब्बा को किसी ने बाजी के लिए रिश्ता बताया और जिस रोज वो लड़का देखने लाहौर जा रहे थे, लाहौर के करीब ही उनका एक्सीडेंट हो गया। वो जानबर ना हो सके और हमको तकदीर ने एक और जख्म लगा दिया। मैं तो अपने घर में खुश और आबाद थी, लेकिन अब बड़ा मसला मेरी बाजी तहमीना, छोटी बहन और भाई का था जो अकेले ना रह सकते थे। अरसलान बहुत इंसान दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो मुझे बेहद चाहते थे। जब उनसे अपने भाई बहनों की मजबूरी बताई, बोले कि इन सबको यहाँ ले आओ और अपने पास रख लो। मैंने कहा कि ऐसा दुरुस्त ना होगा, मेरे वालिद साहब का जाती मकान है, वो उसी में रहते भले लगते हैं। मकान को ताला लग जाएगा और लोग भी आपको यही कहेंगे कि बीवी के रिश्तेदार पाल रहे हो। बेहतर ये है कि हम ही कुछ अरसा उनके पास जाकर रह लेते हैं, जब तक कोई ऐसा रिश्ता बाजी के लिए नहीं मिल जाता कि जिसको घर दामाद बनने की शर्त कबूल हो। अरसलान ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से वालिद साहब के घर मुंतकिल हो गए। वालिद साहब ने काफी रकम बाजी और छोटे भाई के नाम कराई हुई थी, लिहाजा उन्हें खर्चे की तंगी तो न थी, लेकिन तहफ्फुज जरूर चाहिए था। बाजी मेरे और अरसलान के साथ रहने पर खुश थी कि अब उनको डर ना लगता था और बहुत से मसाइल से बच गए थे। अरसलान हर तरह से मेरे भाई और बहनों का ख्याल रख रहे थे। मैं अलबत्ता वालिद के घर आकर कुछ बेआराम जरूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर आराम और राहत का गहवारा था, जहाँ नौकर चाकर सभी सहूलियात मैसर थी। अरसलान की मुझसे मोहब्बत देखकर हर कोई मुझ पर रश्क करता था और किस्मत बाजी की कि अभी तक कोई मौजू रिश्ता ना मिला। लेकिन छोटी बहन ने एफए कर लिया तो उसकी शादी अरसलान ने अपनी बहन के बेटे से करा दी। आसिम ने भी 8वीं पास कर ली और उसका सिलेक्शन आर्मी की एकेडमी में हो गया और वो जहलम चला गया। अब घर में बाजी, मैं और अरसलान रह गए। मैंने बाजी से इसरार किया कि अब आप हमारे घर चल कर रहो, हम बहुत दिन आपके पास रह लिए। मेरा एक ये भी मकसद था कि वो मेरे महलनुमा घर में रहेंगी तो मेरे खाविन के स्टेटस के मुताबिक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। वालिद साहब का घर तो एक मतवस्त तबके के रिहायशी इलाके में बना हुआ था और उनकी वफात के बाद उनका हवाला भी ना रहा था। रिश्तों में लोग ऐसी बातों को भी तो मद्देनजर रखते हैं। बाजी मेरे घर हमारे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए यहाँ उनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है, शोहर के प्यार का खजाना मिल गया है। अरसलान की मोहब्बत मेरे लिए बड़ा सरमाया था, जिससे मेरा घर रश के जन्नत था। वो दिल ही दिल में कुढ़ने लगी और मुझसे हसद करने लगी। कारें, बंगला, दौलत, जेवर सभी कुछ तो मेरे पास था। वो दिल ही दिल में कुढ़ने और मुझसे हसद करने लगी। मैं शहजादियों की तरह रहने लगी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे हाथ जोड़े रहते थे। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों से भी नवाज दिया, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल ना खिले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। अल्लाह जाने क्या वजह थी। हालांकि मैं और अरसलान खुलूसी दिल से चाहते थे कि बाजी तहमीना अब अपने घर की हो जाए। उनकी शादी की उम्र निकली जाती थी। वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद उनका रिश्ता ना हो सका और उनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुश और मुतमईन अपने बच्चों की चहकारों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई बरस बड़ी बहन तन्हाई की आग में झुलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अरसलान के करीब होती हूँ और हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, बाजी खो सी जाती हैं और उदास हो जाती हैं।
अब तो अक्सर वो हमको हंसते बोलते देखकर ठंडी आह भरती थी और उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता था। तभी मुझे बाजी की और ज्यादा फिक्र लगी और मैंने उनको खुश देखने की खातिर अरसलान से कहा कि आप बच्चों और बाजी को लेकर सैर को चले जाया करें। तीसरे बच्चे की आमद थी, इस वजह से मेरी तबीयत खराब रहती थी और घर से निकलना मेरे लिए दूभर हो रहा था। गर्मियां की छुट्टियां थी, मैंने अरसलान को मजबूर किया कि बच्चों को मरी की सैर करा लाएं। मैं नहीं जा सकती, बाजी को ले जाएं। उन्होंने बहुत कहा कि बगैर तुम्हारे सैर का क्या लुत्फ आएगा। मैं ना मानी। दरअसल मैं तो बाजी को खुश देखना चाहती थी, क्योंकि इन दिनों वो बहुत भुजी भुजी और उदास रहती थी। बस उसी दिन से मेरी खुशियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरी बर्बादी का आगाज हुआ। सैर से वापसी पर मेरी बहन का मूड मिजाज कुछ और था और अदनान की नजरें भी बदली बदली थी। वजह मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इस रिश्ते को मैं शको शुबा से बालातर समझती थी जो मेरी बहन और मेरे शोहर के दरमियान था। अरसलान ऐसे प्यार करने वाले शोहर जिस पर एक बीवी पूरा पूरा भरोसा कर सकती थी, जबकि बाजी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी याद को उसी बहन की मोहब्बत ने भरा था। लेकिन आज ये क्या कि दोनों ही मुझसे निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और खामोश थी। तहम्मुल से काम लिया, खुद को समझा लिया कि सगी बहन पर शक करना नाकाबिले माफी जुर्म है। मामूल के कामों में लग गई, लेकिन बाजी के रंग ढंग बनाओ सिंगार से दिल को धड़का सा लग गया। खुदा जाने क्यों बाजी को बेसुकूनी खा रही है। तीसरे बच्चे के जन्मदिन में अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो ये घर मेरा ना रहा। अरसलान ने माफी मांगी और कहा, तुम्हारी बहन का कसूर है, मैंने तो कभी ऐसा ना सोचा था, लेकिन अब जो हो चुका है इसको बताए बगैर मेरे जमीर का बोझ हल्का ना होगा और बढ़ता जाएगा। तुम्हारी बहन की बातों में मैं बहक गया था। उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं सन्नाटे में रह गई। जिस कदर मातम करती कम था, कभी बहन की जानिब तकती थी तो कभी शोहर की तरफ देखती थी। दुख तो ये था कि बाजी को अपनी इस हरकत से कोई दुख और कोई शर्मिंदगी ना थी। दिल अरसलान को धुतकारता था, फिर भी उन्हें छोड़ना ना चाहती थी कि 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल था। लेकिन इखलाकी एतबार से अब मुझे उनके निकाह में नहीं रहना था, क्योंकि अब मेरा अपने शोहर से कोई नाता ना रहा था। मुझे उनका घर छोड़ना ही पड़ा। उन्होंने मुझे तलाक दी और मैं अपने वालिद के घर आ गई कि जहां अरसा से ताला पड़ा हुआ था और बाजी ने अरसलान से निकाह करके मेरा घर संभाल लिया। मेरी जन्नत पर हकदार बन गई। उन्हें मेरे लुटने का जरा भी मलाल ना था और ना मेरे बच्चों पर उनको रहम आया। मैं दिन रात यही सोच सोच कर हैरान होती और घुलती रहती हूँ कि इस कदर करीबी रिश्तों का भी कोई एतबार नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि शायद बाजी ने मुझसे बदला लिया था, जो मैंने अब्बा को उसके और वसीम के बारे में बताया था।